Assalamualaikum. Good morning, dear students. Hope all are fine and doing well. Today we are going to read the poem "The Child Sparrow." The Child Sparrow poem has been written by Dr. Sir Muhammad Iqbal in Urdu language and translated into English language by Professor Ghulam Rasool Malik. Here, Professor Ghulam Rasool Malik. Here we have the brief introduction about the Dr. Sir Muhammad Iqbal. Here you can see the peak of Dr. Sir Muhammad Iqbal too. Sir Muhammad Iqbal, born in 1877 and died in 1938, the famous Muslim philosopher and poet was born in Sialkot, partition India. He studied at Lahore, Cambridge, Munich and was also admitted to the bar at London. Back home he practiced for some time but devoted most of his energy to writing. He also took an active part in the politics of the subcontinent. In 1927 he was elected to the Punjab provincial legislature and in 1930 became president of the Muslim League. Iqbal was considered the foremost Muslim thinker of his day. His poetry and philosophy, written in Urdu and Persian, has been widely read and admired. His seminal works include Bhagi Darab, Ali Jibril, Armaghan Hijaz, Zarb Kalim, Sradi Khudir, Muizebe Khudi, Payam Mashriq, Zubair Anjum and Javed Nama. Here you can see the poem is given below with the central idea too. Actually, the poem has been written in Urdu, as I already told you, in Urdu language by Dr. Sir Muhammad Iqbal. In his book बांकी दरा, इस तरह से उन्होंने अपनी बांकी दरा किताब में लिखा था, ये दुआ लिखी है। लपयाती, जो हम असेंबली पे भी पढ़ते हैं, मॉर्निंग असेंबली में हम पढ़ते हैं स्कूल्स में। लपयाती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हाँ मेरी बरवानी की सूरत यारो, अलम की शम्मा से हाँ मुझको मोहब्बत यारो, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से सईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राहों से राह पे चलाना मुझको। ये इस तरह से उन्होंने लिखी और हम लोगों को याद आ गया होगा कि हम मॉर्निंग असेंबली पे दुआ पढ़ते थे, सभी टीचर्स और बच्चे भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला हमारी ये दुआ भी कबूल फरमाए। ओके, हम अपने पोएम की ओर आएंगे वापस, जो इसका इंग्लिश वर्जन है। तो यहाँ पे हमें इस पोएम का थीम दिया है। The poem is about the pious, virtuous wishes of the child. He wants to serve the nation and help the needy. और साथ में हम देखते हैं ये जो पोएम है ये 3 stanzas पे है, मुश्तमिल है, comprises of 3 stanzas and every stanza consists of 4 lines. Here we have the first stanza. My tender hopes rise to the lips, I pray. Kindly, kindly let me my love be. May through me world's darkness vanish away, and every corner filled with the light of day.
ये जो उसकी दुआ है, जो उसकी ख्वाहिश है, उसके होठों पे आती है, बच्चे की होठों पे, लबों पे आती है, और वो कहता है गॉड से, अल्लाह ताला से, कि मेरी जो एक जिस तरह से एक शम्मा अपनी रोशनी से, अपनी लाइट से दुनिया अंधेरे को दूर करता है, इसी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी की जो लाइट है उसकी फ्लेम से मैं जो दुनिया में अंधेरा है उसको, जो इग्नोरेंस है उसको ख़त्म कर दूँ, जो बुराई है उसको ख़त्म कर दूँ, ताकि मैं अपनी नॉलेज से, अपने लॉ से, अपनी क्वालिटीज़ से, उनसे की वजह से मैं क्या कर दूँ, अपनी ऑनेस्टी की वजह से, अपनी ट्रूथफुलनेस की वजह से मैं अब ये जो दुनिया में, वर्ल्ड में जो भी डार्कनेस है उसको ख़त्म करूँ, हर तरफ खुशियाँ बिखेर दूँ। जो हमने सरहदें बनाई हैं, बाउंड्रीज़, वो ख़त्म हो जाए। वो चाहे अल्लाह ताला से कहता है जो भी बाउंड्रीज़ हम लोगों ने आपस में कायम की है, ये जो लकीरें खींची हैं रेस की, नेशन की, वो ख़त्म हो जाए। पोरनेस, रिचनेस, वो सारी ख़त्म हो जाए। नफ़रत जो हेट है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह सेकंड स्टेंजा है। Now let us read the second stanza. May I adore my land to me so dear, even as the blossoms make the garden fair, as the moon goes round the shining light inside. So let me love the candle of knowledge best. मैं अपनी जो नेशन, अपने मुल्क के लिए कोई ऐसा काम कर जाऊँ जिससे वो खूबसूरत बने। जिस तरह ब्लॉसम्स खुशी बिखेर देते हैं, अपने गार्डन को खूबसूरत बना देते हैं, अपनी महक से, खुशबू से, अपनी खूबसूरती से, मैं भी इसी तरह अपनी कंट्री को क्या करूँ, ब्यूटीफुल बना दो। जिस तरह से एक मौत में वो एंथुसिज्म है, पैशन है कि उसमें वो जो मौत होता है, जो परवाना होता है, उसको तपिश होती है आग की, और वो इसके इर्द गिर्द को चक्कर लगाता है लाइफ की। तो इसी तरह मुझ में भी वो पैशन हो, ठीक है। सो लेट मी द लव द कैंडल ऑफ नॉलेज बेस्ट। मैं अपनी नॉलेज से जो भी मैंने इल्म हासिल करूँ उससे मैं ये अपनी दुनिया, अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, उसको ब्यूटीफुल बना दूँ, उसके लिए काम करूँ। टू लव एंड अवान। नाउ वी हैव द लास्ट स्टैंजा, इट इज थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। To love and serve my poor, my mission be, for the weak and those in pain my sympathy. Save me, my God, from all sinners evil. To walk the virtuous ways, grant me the will. मैं क्या करूँ, मेरा मकसद हो क्या, गरीबों की मदद करना, उनसे मोहब्बत करना, जो दर्दमंद है, जो ज़ईफ़ है, उनके साथ हमदर्दी करूँ, उनकी जो सैड जो भी वरीज़ है उनको शेयर आउट करूँ, सॉर्ट आउट करूँ उनकी प्रॉब्लम्स को, हर बुराई से बचाना। गौर से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे हर बुराई से बचा, मुझे वो राह दिखा जो नेक राह हो। हर समय ज़िंदगी के हर लम्हे में मुझे वो उस राह पे चलाना जो क्या हो, नेक राह हो। तो यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट्स, यू हैव सीन द पॉइंट, द पोएट हैज़ यूज्ड मेटाफर्स एंड सिमिलीज as the simile has been used in the poem. As the moon goes round the shining light in zest, and similes too have been used, my tender hopes. Kindly candle light may my life be. Blossoms make, even as the blossoms make the garden fair. Here you can see the metaphors have been used. Okay dear students, thank you all for watching this video. Have a nice day.